Please go through one sentence. Read the question, read the answer, tell me if you don't get something. There are 10 one sentences. One sentence, the answer word. One sentence, question, answer, दोनों ध्यान से पढ़ो. 5 minutes quickly. तेरा ध्यान है तू पढ़ना. इसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल. आया? What is reserve capital? What is reserve capital दिख रहा है? लास्ट लेक्चर बताया था, याद है आपको? डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल. एनीवन रिमेंबर? What is capital reserve? कैपिटल रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट. शेयर फोर फीचर का प्रॉफिट. लमसम रिसीव रिजर्व्स आर कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व. बराबर है? What is a reserve capital? It is uncalled money on share should be called up at the time of liquidation. चाहिए रहेगा तभी. वो मंगवाएगा कि नहीं उसका भी गारंटी नहीं. रिक्वायर्ड होगा तो आएगा. That's called reserve capital. Both are different. Okay? Reserve capital, capital reserve. 2 बार आ चुका है बोर्ड. One sentence, one sentence. The ratio of shares one chance. Should be answer. One sentence ना chance. True or false सवाल है. वो false तो उसका वेटेज ही देखते हैं तो. प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट इज प्लेसमेंट टू प्राइवेट एंटिटीज. मतलब बिफोर द आईपीओ, आफ्टर द आईपीओ कभी भी कर सकते. एक्स्ट्रा शेयर्स और नए इश्यू करने हैं तभी भी कर सकते. आपको पब्लिक में जाके ढिंडोरा नहीं पीटने का है. एफपीओ नहीं करने का. फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स. स्मॉल एंटिटी को पकड़ के चिपका दो शेयर. उनको खरीदने में इंटरेस्ट है, आपको बेचने में, आपको कैपिटल रेज करना कर सकते. कभी भी कर सकते. प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक ऑफर भी 2-3 बार करना है. आईपीओ, एफपीओ कितनी भी बार कर सकते. बट इट इज जनरली नॉट कंसिडर्ड अ गुड साइन. इट्स अ ग्रोइंग कंपनी, छोटा कंपनी है, ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट. बट एक बार एक स्टेज आ जाए उसके बाद घड़ी घड़ी कैपिटल रेज करना अच्छी बात नहीं. देखो पढ़ा मुझे. व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स? Shares which have a preference over equity. Payment of dividend and at the time of liquidation. Dividend rate is fixed. What is registered capital? Upper limit beyond which you cannot raise. What is reserve capital? Uncalled money. Called up at the time of liquidation. What is oversubscription of shares? Application exceed your issued capital. Which account is debited when share first call money is received? Bank. When are the shares allotted on pro rata basis? When proportionate allotment is made. Excess application and no rejection. Proportionate allotment. What is forfeiture of shares? Cancellation of shares due to non-payment of calls. And what is call in arrears? Non-payment of call money by the shareholders. What do you mean by shares issued at premium? Issued at a price higher than the face value. What is paid up capital? Part of caller which is actually paid by the shareholders. Complete the following. When face value of share is ₹100 and it is issued at 120, then it is said that the shares are issued at premium.
Dash capital is the capital in which a company is authorized to issue by its memorandum. Authorized. Difference between called up capital and paid up capital is known as calls in arrears. Bhandari ji, the difference between called up capital and paid up is called calls in arrears. Dash shareholders get a fixed rate of dividend. Preference shareholders. Dash shareholders are the real owners of the company. Equity shareholders. Dash form of organization in which capital is raised through the issue of shares. Joint stock company. Dash capital is the part of issued capital which is subscribed by the public. Subscribed capital. The part of authorized capital which is not issued to the public. Unissued capital. It's called unissued capital. शेयर्स में सबसे ज्यादा चांस इसका है जी वाले का. कैलकुलेट द फॉलोइंग. मिला? ये एनएम में पूछा था लास्ट सेमेस्टर. एनएम का ऑब्जेक्टिव में यही आया था. एनएमटी बाय सेमेस्टर. कैलकुलेट द फॉलोइंग. वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 equity shares paid share application money of 3, allotment of 4 and failed to pay the final call of 3. समझ में आया क्वेश्चन? 10 में से 7 भरा है और 3 बाकी है. Can you see that? His shares were forfeited. Calculate the amount of share forfeiture. कितना आएगा? 500 into 7. हड़पा हुआ पैसा 3500. मिला? पब्लिक उधर कैलकुलेशन दिखाना भूल जाए. Show the calculation and then show the answer. Okay? Necessary. Otherwise copy case. Second one, 10,000 equity shares of 10 each are issued at 10% premium. Calculate the amount of share premium. 10% premium मतलब ₹1 premium हुआ. 10,000 into 1 is 10,000. समझा? Simple. The company received excess application of 5,000 shares. Excess 5,000 share आए. Excess. At 4%. Application of 1,000 shares were rejected and pro rata allotment was made. Calculate the amount of application money adjusted against allotment. Allotment में कितना adjust हुआ होगा? Third one, calculate the following. No. You are not getting the question. 5,000 शेयर पे एक्स्ट्रा पैसा आया है, उसमें से 1,000 को रिजेक्ट किया और 4,000 शेयर को प्रो रेटा किया, तो उनका कितना पैसा अलॉटमेंट में गया होगा? 4,000 इंटू 4 16,000. समझा? 5,000 इंटू 4 20,000 आया है, उसमें से 16,000 गया अलॉटमेंट में और 4,000 रिफंड हुआ. समझ में आया? कैलकुलेट द फॉलोइंग बेस्ट करके जाना एकदम परफेक्टली. देन 80,000 equity shares of 10 each issued and fully subscribed and called up at 20% premium. Calculate the amount of capital. 80,000 into 10. 8 lakhs. Directors issued 20,000 shares of 100 each at par. They were fully subscribed and called up. All money was received except one shareholder holding 100 equity share who failed to pay the final call of 20%. Calculate the amount of paid up capital of the company. How do you calculate paid up? It is called up minus called in. ये same question है. Ditto question पूछा था NM का semester में. Share the paper also. Called up minus calls in arrears is called paid up. तो called up कितना था? 20,000 into 100, 20 lakhs. उसमें से एक बंदे ने क्या नहीं भरा? 20 रुपया और 100 शेयर, तो 2,000. तो 20 lakh minus 2, 19,98,000 आएगा. 19,98,000 is paid up capital. Is this clear? Hello? The last one. Company said regret letters. What do you mean by regret letters? Rejection. 200 shares and allotment letter to 25,000 shareholders. Application money was 20 rupees. Calculate the amount of application money which was refunded. 20 into 100, 2,000. Villa? I think that's it. And now we go to the last chapter of this year, vertical statement analysis. Take out standard textbook. Standard textbook निकाल के रखो. At least one on a bench. Then just share it. एक बेंच पे एक है. ओपन करो बड़ा करी. अभी वर्टिकल स्टेटमेंट जस्ट लाइक शेयर्स. सम्स आर क्वाइट इजी. गरीब लोग का चैप्टर है. जिसको कुछ नहीं आता है
तो वर्टिकल स्टेटमेंट आएगा। पेटी कैश 11 का जो पेटी कैश बुक था वैसा है। So it is the simplest of all, but I will advise if you get it in option with death, attempt death rather than vertical statement. Reason being, chapter simple है, but there are lots of calculations, simple calculations, but many percentage का, तो उधर मार्क्स जाने का चांसेस ज्यादा है। अभी चैप्टर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग करते हैं ना शेयर्स की, अगर आपको इंडेक्स फंड में नहीं जाना है और खुजली है ज्यादा पैसा कमाने का, इंडिविजुअल शेयर को स्टडी करने की, तो उसका बेस होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के दो पार्ट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव, एक्चुअली क्वांटिटेटिव इज सेकेंडरी, दिस इज क्वांटिटेटिव, जहां पे आप कंपनी के फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक करते हो। वर्टिकल स्टेटमेंट मतलब उसका बैलेंस शीट, उसका एनुअल रिपोर्ट, वो चेक करते हो, यस ध्वनि, एंड रेशियो एनालिसिस करते हो। बेस्ड ऑन दैट यू डिसाइड वेदर द कंपनी इज इन्वेस्टेबल और नॉट। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब मैनेजमेंट क्वालिटी कैसा है, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसा है, मार्केट में रेप्यूटेशन कैसा है, इनविजिबल चीज है जो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखने को मिलती नहीं है, वो ज्यादा मैटर करती है फॉर अ कंपनी देन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इज दिस क्लियर? तो एज नॉर्मल शेयर होल्डर्स अपने को टॉप मैनेजमेंट वगैरह से मिलने का मौका मिलता नहीं है, तो इसके लिए खाली फैक्ट्स एंड फिगर्स देख के जंप करके इन्वेस्ट करना इज नॉट द राइट थिंग। बट नेवरदलेस क्वांटिटेटिव एनालिसिस चाहिए, बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होना चाहिए टू गेट अ बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी, कैसा कंपनी इन्वेस्टेबल है कि नहीं। तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप होता है ये वर्टिकल स्टेटमेंट एनालिसिस। ओके, व्हाट इज दिस वर्टिकल स्टेटमेंट? वर्टिकल स्टेटमेंट मींस फाइनल अकाउंट्स। वर्टिकल स्टेटमेंट मींस फाइनल अकाउंट। किसके फाइनल अकाउंट? सोल प्रोप्राइटर के, पार्टनरशिप के, कंपनीज के। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज, we are talking about company. Now why we call them vertical statement? Because companies don't make final accounts in T format. We do it in T format. What is T format? Debit credit. Trading P&L, debit side, credit side, expense, incomes, right? Balance sheet, liabilities and assets. T format again, okay? Left side is asset, right side is, left side is liability, right side is asset. Companies, when they make the final accounts, they do it in vertical format. They do it in vertical format. अभी वो फॉर्मेट आपको मिलेगा पेज नंबर 346. टेक आउट पेज 346. So first step of analysis is conversion of T format into vertical format. T format को किस में कन्वर्ट कर देने का? वर्टिकल फॉर्मेट में। उसके बाद एनालिसिस करेंगे हम लोग, कैसे एनालाइज करना है सब बताता हूं। पेज 346 ले लो सब लोग, मिला सबके सामने है। 346 पे आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, मिला? That's the format of a vertical balance sheet. That's the format of a vertical balance sheet. मिल रहा है आपको? हेलो? तो सबसे पहला स्टेप, अभी आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने नहीं है। एनपीओ में आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए थे, फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए थे। अभी आपको फाइनल अकाउंट बना के दे दिए गए, रेडीमेड है, आपको सिर्फ उसका फॉर्मेट चेंज करना है। आपको क्या करना है, उसको टी फॉर्मेट से किस में लाना है? वर्टिकल। तो बेसिकली इट्स सिंपली कॉपिंग द क्वेश्चन। आपको कॉपी करने के मार्क्स चाहिए, तो खाली फॉर्मेट याद रखना जरूरी है। ओके, फॉर्मेट में ध्यान दोगे तो सबसे पहला हेड मिलेगा, जो लायबिलिटीज और एसेट्स थे ना उनका नाम चेंज हो गया, उनको कहा जाता है सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। देख रहे हैं, सोर्सेस ऑफ फंड्स ऑन टॉप यू विल फाइंड आउट सोर्सेस, और सब एक लाइन में। फॉर्मेट ये पर्टिकुलर अमाउंट, इनर कॉलम अमाउंट एंड आउटर कॉलम अमाउंट, ऐसा दिखेगा। दिस इज द फॉर्मेट। ओके, पर्टिकुलर्स, अमाउंट,
ओके अभी पहला हेड मिलेगा आपको सोर्सेस ऑफ फंड्स. सोर्सेस ऑफ फंड्स मतलब लायबिलिटीज. कंपनी मेजॉरिटी कहां से पैसा रेज करता है? कोई भी बिजनेस या तो खुद का लगाएगा या तो बाहर से लोन लेगा. तो दैट्स द टू सब डिविजन ऑफ सोर्सेस. सोर्सेस के अंदर दो पार्ट्स होंगे. एक होगा शेयर होल्डर्स फंड्स या उसको बोला जाता है ओनर्स इक्विटी या फिर नेटवर्थ. ओनर्स इक्विटी या फिर नेटवर्थ सब एक ही है. दिख रहा है वहां पे. सोर्सेस ऑफ फंड्स के अंदर दो मेन हेड्स हैं. एक मिलेगा शेयर होल्डर्स फंड्स या ओनर्स फंड्स, दूसरा मिलेगा बोरोड फंड्स. ए और बी करके ऐसा कुछ तो दिया होगा शायद. दिखा 1 या 2 A B whatever it is. Big A big B. So shareholders funds and 26 पे यार 30 का आ गया. चलो प्लीज बी क्वाइट. अभी आपका शेयर होल्डर्स फंड्स का मतलब क्या? ओनर का पैसा. और बोरोड फंड्स मतलब बाहर वालों का पैसा. ओके अभी शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर 3 सब डिविजन्स हैं. उसको कहा जाता है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड लेस फिक्टिशियस एसेट्स. ये ऐड होता है, ये लेस होता है. इसका मतलब शेयर कैपिटल तो पता है आपको, ओनर का कैपिटल है जो फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है. व्हाट आर रिजर्व्स एंड सरप्लस? उस पे कमाया हुआ प्रॉफिट्स, वो भी ओनर को बिलोंग करता है. कंपनीज प्रॉफिट कैपिटल में ऐड नहीं करते, अलग से दिखाते हैं. तो उसमें कैपिटल रिजर्व आ गया, शेयर प्रीमियम आ गया, रेवेन्यू रिजर्व आ गया, पीएनएल अकाउंट आ गया, रोज का कमाया हुआ, हर साल का कमाया हुआ. तो वो सारे जाते हैं किसमें? रिजर्व्स एंड सरप्लस. गॉट इट? एंड व्हाट आर फिक्टिशियस एसेट्स? फिक्टिशियस एसेट्स आर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्या होता है ये? डेफर्ड रेवेन्यू, हैवी एडवर्टाइजमेंट, हैवी लीगल एक्सपेंस. जो आप एसेट में दिखा देते, याद है? वो एसेट में ना दिखा के लायबिलिटी से माइनस किया जा रहा है. बात तो वही हुआ. एसेट में कोई चीज दिखाओ या लायबिलिटी से माइनस करो. जैसे आरडीडी है, आरडीडी वैसे तो लायबिलिटी है, लेकिन हम लोग डेटर से माइनस करके लिखाते हैं, मतलब तो सेम होता है. तो प्रेजेंटेशन जब आप वर्टिकल फॉर्म में करते हो तब फिक्टिशियस एसेट एसेट में ना दिख के शेयर होल्डर्स फंड से माइनस किए जाते हैं. समझ में आया? सो पहला हेड होता है शेयर होल्डर फंड. उसमें 3 पार्ट्स: शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड माइनस फिक्टिशियस एसेट. तीनों हो गए. ये हो गया ओनर का पूरा पैसा जो बिजनेस में लगाया हुआ. शेयर कैपिटल में दोनों आ गए, प्रेफरेंस इक्विटी सब आ गया उसका. इज इट क्लियर? बोरोड फंड्स. बोरोड फंड में क्या आता है? लोन्स, कोई भी प्रकार का लोन, बैंक लोन, डिबेंचर्स, थर्ड पार्टी लोन, फिक्स्ड डिपॉजिट्स टेकन फ्रॉम पब्लिक, कोई भी बोरोइंग्स किया आपने, वो सब कहा जाता है? बोरोड फंड्स. तो खुद का पैसा इनर कॉलम, सब टोटल आउटर कॉलम. बोरोड फंड्स इंडिविजुअल अमाउंट इनर कॉलम, सब टोटल आउटर कॉलम. A plus B, biggest total. This is called as total sources of fund या total funds available. इसको क्या बोलते हैं? Total funds available. Total funds available. लिखा है कि नहीं? I don't know the. Total funds available. Okay. Total sources मतलब इतना funds कंपनी ने रेस कर लिया. यहां से पैसा आ गया, ओनर का और बाहर का मिला के आ गया. अभी पैसा लेके उसको गले में बांध के घुमाने का है कि इन्वेस्ट करना है. इन्वेस्ट करना है. तो द सेकेंड पार्ट ऑफ बैलेंस शीट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. इसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. मतलब ये जो पैसा रेज हुआ है, ये कंपनी ने कहां कहां लगाया है, किन किन चीजों में इन्वेस्ट किया है. तो इसके 3 हेड्स होते हैं. पहला होता है फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट्स और तीसरा होता है नेट करंट एसेट या फिर नेट वर्किंग कैपिटल. नेट करंट एसेट्स या फिर नेट वर्किंग कैपिटल. तो मैंने समझो 50 लाख रुपए शेयर कैपिटल से रेस किया, 20 लाख का लोन उठाया, 70 लाख रुपीस मेरे बिजनेस में आ गए.
तो वो 70 लाख का, इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो मेरा मेजॉरिटी ऑफ द मनी कहाँ इन्वेस्ट होगा? प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? मशीनरी। सबसे पहला प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स चाहिए। तो ग्रेट चंक ऑफ मनी गोज इनटू फिक्स्ड एसेट्स फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बट इफ यू आर अ सर्विस बेस्ड कंपनी और एन ऑनलाइन कंपनी, यू आर ऑन एन एसेट लाइट मॉडल। इसको क्या बोलते हैं? एसेट लाइट मॉडल। तो आपका मेजर चंक will not go into fixed assets. It might go into your hiring of employees, salaries, expenditure, का बोलते हैं ना, customer acquisition cost, CAC, customer acquisition cost, advertising, promotion, उसमें आपका सबसे ज्यादा खर्चा जाता है। तो डिपेंड करता है, आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सर्विस, हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि वी आर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, ओके। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में या ट्रेडिंग बिजनेसेस में मेजॉरिटी ऑफ द चंक गोज इनटू फिक्स्ड एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर्स, आपका प्रॉपर्टीज या आपका कार्स हो गया, डिलीवरी वैन्स हो गया, ये सब आइटम्स में जाएगा। तो 70 to 80% ऑफ द मनी विल गेट ब्लॉक्ड इनटू फिक्स्ड एसेट्स। 70 लाख में से समझो 50 लाख चला गया फिक्स्ड एसेट। इन्वेस्टमेंट्स आर ऑप्शनल। इन्वेस्टमेंट्स होना ना होना इन कंपनी मैटर नहीं करता है, हुआ तो अच्छी बात है। इंडिकेट्स दैट कंपनी इज हैविंग गुड अमाउंट ऑफ सरप्लस फंड्स, कंपनी में एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स दिखेगा। हर एक कंपनी के बुक्स में इन्वेस्टमेंट्स दिखता नहीं है। तो अगर सरप्लस कैश है तो फिर इन्वेस्टमेंट्स दिखेगा। और ये इन्वेस्टमेंट आपका शेयर, सट्टा, कॉल, पुट ऑप्शन वो नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट होते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मतलब सेफ सिक्योरिटीज में होते हैं जनरली। शेयर्स में भी कर सकता है, या फिर बॉन्ड्स में, या फिर ट्रेजरी बिल्स में, या फिर फिक्स डिपॉजिट्स में, जहां पे टेम्पररी फंड पार्क करके रखा है। जैसे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आए, आप वो फंड्स निकाल के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। समझ में आया? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, शॉर्ट टर्म ताबड़तोड़ फटाफट कमाई करने के लिए नहीं होते। समझ में आया? इंटरेस्ट अर्न करने के लिए और पैसे को सेफ रखने के लिए। तीसरा होता है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल मतलब रोलिंग के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, वो पैसा आपका ब्लॉक हो जाता है वर्किंग कैपिटल। 3 जगह पे आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है। सबसे पहला कहां हो रहा है? फिक्स्ड एसेट में, प्रोडक्शन के लिए। दूसरा इन्वेस्टमेंट, अगर एक्स्ट्रा कैश पड़ा है तो। और तीसरा होता है नेट वर्किंग कैपिटल। ये नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? व्हाट इज दिस नेट वर्किंग कैपिटल? इट इज सिंपली करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। यू नो, करंट एसेट्स वी यूज्ड टू शो अंडर एसेट्स and current liabilities we used to show under liabilities. But when you are making a company's balance sheet, this current asset minus current liability will be subtracted from current asset to arrive at net worth.